Hello student, how are you? I hope you and your family members with your parents may be prosperous and healthy during the situation of COVID-19. And it's my advice now these days the situation of COVID-19, especially the third wave, is going on. It's paving in inside the country also. In many states, the cases of coronas are increasing very fast. So please don't ignore this situation and don't go outside unnecessary. If this is necessary, you have to wear mask, that is must, and also wash your hands if needed, and always use sanitizers. So let us discuss today in my video chapter 3 civics. What is the name of chapter? That is the how the state governments works. How state governments works. So there are three steps of governments that are here written. Thus, in the center means in our national capital city, New Delhi. That is the central government. So that is the central government who work for the whole country. That is called central governments. After below the central governments, that is the state governments. In India, in each states जिनको हम राज्य बोलते हैं, that states are also run by the states government. हर राज्य की अपनी सरकार होती है, उसको हम बोलते हैं state governments. After that, that is one government just below the state governments that are working in the villages, run by the ग्राम प्रधान, विलेज पंचायत, जिसको हम बोलते हैं विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत. Recently, in our states, in Uttar Pradesh, the elections were held for the village panchayat, for the elections of Gram Pradhan hai. And just like the village panchayat in villages area, in township area, जहाँ मार्केट है, बाजार है, जहाँ टाउन है, वहाँ पर जो है टाउन में म्यूनिसिपलिटीज जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका, इनके अब चुनाव होता है, चेयरमैन होता है इनका जो है मुखिया. After that, cities. So less than the 10 lakh populated cities, there is municipalities. But 10 lakh या 10 lakh से ऊपर 10 lakhs or above 10 lakhs, if any city have the population its own, so that will be corporation. उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नगर निगम. इनका चेयरमैन अध्यक्ष कौन होता है? उसको बोलते हैं मेयर. So we have to discuss about especially in this chapters state governments. This state governments जिसको हम बोलते हैं राज्य सरकार. So state governments is created or made by the MLAs, MLA, member of legislative assembly. What is legislative assembly? Legislative assembly को हिंदी में बोलते हैं विधान पालिका या विधायिका. That is work for the state just like the parliament in the center. So parliament is the debating house of the whole countries, and in the parliaments there are all the member of parliaments are sitting for the discussing and debating the national issues and policies. But in state legislative assembly, that are the member of legislative assembly that are called in locally विधायक जी. तो जितने हमारे विधायक जी लोग हैं जिनको जनता चुनती है, दैट्स आर आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपुल जस्ट 18 ईयर एज आर अबव द 18 ईयर एज. तो ये लोग जाते हैं. अगर अपने स्टेट्स को देखा जाए तो आवर कैपिटल सिटीज लखनऊ, तो लखनऊ में विधान पालिका है जिसको विधायिका बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में बोलते हैं. वहाँ ये लोग बैठ करके स्टेट पॉलिसी और स्टेट गवर्नमेंट्स के वर्किंग पे ये डिबेट करते हैं. स्टेट्स का कोई इशू है तो उस पर ये डिबेट करते हैं. तो ये गवर्नमेंट बनती कैसे है, कैसे इसका कार्य होता है, ये इसका हेड कौन होता है? तो चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो हाउ अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर. बाकी एमएलए कैसे मिनिस्टर बनते हैं, तो मंत्री कैसे बनते हैं, सरकार कैसे स्टेट में बनती है,
चुने जाते हैं, इनका काम क्या है, ये जा करके लखनऊ में विधायिका में बैठ करके उस बिल्डिंग में क्या करते हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट्स मेड बाय द एमएलए, एमएलए जो विधान सभा के सदस्य हैं, इन्हीं लोग में से सरकार बनती है। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, वी हैव टू नो अबाउट द MLAs. M means member, L means of legislative, A means assembly. तो MLAs का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हु इज एन MLA? विधायक कौन है, कौन विधायक हो सकता है? द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपुल एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एन MLA। लोगों ने जिसको चुन दिया है विधानसभा के सदस्य के रूप में, जिसका लोगों ने चुनाव किया है, उसको हम बोलते हैं MLAs या विधायक। इन दिस वे वी कैन से दैट द MLAs आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दीज आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज? अब MLA को चुनाव होता है, विधायक जी का चुनाव होता है, तो कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है? तो होल स्टेट्स इज डिवाइडेड इनटू सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में कुछ एरिया को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, उनका कुछ नेम रख दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विधानसभा क्षेत्र। तो ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्टेड वन MLA। एक विधानसभा क्षेत्र से एक MLA, एक विधायक जी का चुनाव होता है। So every state in India has legislative assembly. Each state is divided into different areas that are called constituencies. So what are constituencies? Each state is divided into different areas for the election of the MLAs, that are called constituencies. What is a majority in legislative assembly? So what is the role of majority in the state governments? Just after the elections, the political parties who get the majority means more than 50% of the total seat of the state's legislative assembly। जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो जितने विधानसभा क्षेत्र हैं जिनको हम सीट बोलते हैं, तो टोटल सीट जितनी होती है उसका 50% से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी के विधायक जीत जाते हैं, यानी कि इतने विधायक जीते हैं किसी भी पार्टी के, जिनकी टोटल जो नंबर है, संख्या है, वो टोटल विधानसभा की सीटों से 50% से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी मीन मोर देन 50% नंबर। सो व्हाट इज अ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली? A political party whose MLAs have won more than half the total members of constituencies in a state can be said to be in a majority in legislative assembly। तो उनको हम बोलते हैं, अब वो जब 50% से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा सीटें वो पॉलिटिकल पार्टी जीत लेगी तो मेजॉरिटी में हो जाएगी, और जब वो मेजॉरिटी में आती है तो दैट पॉलिटिकल पार्टीज मेक द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बनाने का प्रोसीजर क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जिस पार्टी के विधायक जीत करके जाते हैं, वो मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद वो करते क्या है? दे हैव टू चूज वन लीडर, वो अपना एक नेता चुनते हैं कि ही आर शी विल बी चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे विधायक मिलकर के एक लीडर का चुनाव करते हैं, इलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट लीडर कॉल्ड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं। तो राज्य का जो राज्यपाल है, चुने हुए लीडर को मेजॉरिटी पार्टी के वो कॉल करेगा, बुलाएगा। आफ्टर दैट गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। इट मीन्स चीफ मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल, चीफ मिनिस्टर इज द अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर। राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। एंड दैट चीफ मिनिस्टर आल्सो सेलेक्ट द पीपुल हु विल बी द मिनिस्टर। यहाँ पीपुल लगा रहा हूँ, विधायक नहीं। वो किसी जो नहीं चुनाव जीता है ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ करके मंत्री बना सकता है, जिसको गवर्नर अपॉइंट कर देगा।
अब टर्म्स एंड कंडीशन का है, अगर वो विधायक नहीं है, अगर वो एमएलए नहीं है, चुना हुआ नहीं है, तो विद इन द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उसको चुनाव जीत करके एमएलए बनना होगा। अगर वो एमएलए नहीं बन पाता है ड्यूरिंग 6 मंथ, तो वो फिर मंत्री नहीं रहेगा। तो इसीलिए पीपुल वर्ड यूज होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा ही करेगा। तो अब जब सरकार बन जाती है जिस पार्टी की, उसको क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी। तो व्हाट इज द रूलिंग पार्टी? द पॉलिटिकल पार्टी हु मेक द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट, दैट्स आर कॉल्ड रूलिंग पार्टी। तो अब आता है कि रूलिंग पार्टी हो गए, सत्ता पक्ष हो गया, सरकार बन गई, तो विपक्ष क्या है? व्हाट इज अपोजिशन? द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर नॉट गेन द मेजॉरिटी, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर एमएलए जो मेजॉरिटी में नहीं है, दैट्स आर नॉट रन द गवर्नमेंट, जो सरकार में नहीं है, नहीं चला रहे, उस सबको मिला करके अपोजिशन बनता है। सो विच पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, मैंने बता दिया। और उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड द अपोजिशन? ऑल अदर देन रूलिंग पार्टीज मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। अब इसके बाद so you have to also advise, please read this chapter line by line। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, बिल्कुल ही पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरा काम है जो मेन टर्म्स थे जो समझ में नहीं आते, उनको मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। अदरवाइज it's depend totally upon you, see you will read this chapter or not। So how do people who are MLAs become chief minister and minister? ये क्वेश्चन है कि जो लोग एमएलए बन गए हैं वो कैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं और मिनिस्टर बनते हैं। तो मैंने बता दिया कि ऑल द मेजॉरिटी पार्टी एमएलए चूज देयर लीडर, और लीडर कॉल्ड बाय द स्टेट गवर्नर, and governor appoint that leader as a chief minister, and chief minister make a list of the people who will become the minister। अब जिनको मंत्री बनाना है, मंत्री बनेंगे, उनकी लिस्ट जो है बना लेता है चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर को देता है, और गवर्नर उनको कॉल करके मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है, ओथ भी दिलाता है, शपथ भी दिलाई जाती है। तो ये हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है वो मैंने बता दिया है। सो एक्सप्लेन ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होता है, माने वहाँ लोग बैठ करके विधायक लोग जाते हैं, गाली गलौज मारपीट करते हैं, और क्या क्या होता है। सो ड्यूरिंग डिबेट टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर व्यू, अपना अपना दृष्टिकोण बताएंगे, ओपिनियन देंगे, मत देंगे, एंड आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछते हैं रिलेटेड टू द इशू ओरिजिनेटेड बाय द स्टेट्स सोसाइटी, जो यहाँ पर अपने समाज में किसी भी तरीके से स्टेट्स की मशीनरी में जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। सजेशन, अपना सजेशन भी देते हैं, सलाह भी देते हैं। और हाउ शुड ऑल द इश्यूज बी सॉल्व, और ये बताते हैं कि ये समस्या है तो ऐसे सरकार करे, वैसे करे, ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जितने भी पॉलिसीज हैं, वर्किंग है गवर्नमेंट की, इश्यूज है स्टेट्स के, जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये डिबेट में इनके पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पे बहस डिबेट होती है, और इन पे सलाह भी दी जाती है, ओपिनियन दिए जाते हैं कि अच्छी पॉलिसी बने और स्टेट्स गवर्नमेंट अच्छे से स्टेट्स को रन कर सके। सो दैट्स इज ऑल टुडे। I hope you will read this chapter thoroughly. Okay, thank you. Have a good day. Jai Hind.